आवाज आ रही है। दावा देता हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर सफ़ी सलमा साहब को, जो कि गुलबर्गा शरीफ इंडिया से हमारे साथ हैं। वो तिलावत कलाम पाक से कुरान का आगाज़ करें और साथ ही हम्दो नात के अशार भी पेश फरमाएं। और आज का जो दिन है, आज की शाम है, ये बड़ी मुबारक है। आज रबीउल अव्वल का चांद तुलू हो रहा है, तो आज यकम रबीउल अव्वल है। और आप सबको भी रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। तो डॉक्टर सफ़ी सलमा साहब, अल्लाह ताला के पाक नाम से कुरान का आगाज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मौजूद निज़ाम की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए कलाम पाक की चंद आयत समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. आइए हमदे बारी ताला के दो तीन शेर समाप्त करते हैं, उसके बाद नात शरीफ की चंद अशआर पेश करने के साथ हासिल करूंगा। रहमान है तू या रब, गफ्फार नाम तेरा। रहमान है तू या रब, गफ्फार नाम तेरा। बंदों को बख्श देना मौला है काम तेरा। बंदों को बख्श देना मौला है काम तेरा। है ला शरीक को यकता, है लम यलिद इलाही। है ला शरीक को यकता, है लम यलिद इलाही। शाह उमम से
آل نبی و قرآن اور سیرت شہیدی، کونین میں میرے رب ہے فیض عام تیرا، دربار مصطفیٰ میں ہو شام زندگی کی، دل سے دعا ہے کرتا آج غلام تیرا، تیرے حبیب کا ہو دیدار زندگی میں، مانگے سخی یہ مولا فضل دوام تیرا، درود شریف آپ اسماعیل گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، کیونکہ آقا کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ چکا ہے، اسی مناسبت سے نعت شریف کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ خدا کا کرنے کو اعلان آ گئے آقا، خدا کا کرنے کو اعلان آ گئے آقا، بنانے سب کو مسلمان آ گئے آقا، اس نے مطلب دیکھیے گا، خدا کا ہم پہ ہے احسان آ گئے آقا، خدا کی ہو گئی پہچان آ گئے آقا، دیکھیے گا، خدا نے بعد میں قرآن کو کیا نازل کہ بن کے بولتا قرآن آ گئے آقا، زمانے بھر میں تھے جتنے بھی ظلم کے سرا،
بنانے ان کو گلستان آ گئے آقا، یہ سر جھکا کے کہیں گے در نبی پر ہم، یہ سر جھکا کے کہیں گے در نبی پر ہم، ہیں بن کے آپ کے مہمان آ گئے آقا، ہیں بن کے آپ کے مہمان آ گئے آقا، جہالتوں کے مٹا کر اندھیرے دنیا سے چڑھانے دین کو پروان آ گئے آقا، گناہ گاروں نہ گھبراؤ محشر سے، لیے نجات کا سامان آ گئے آقا، ارے مکتا ہماری جان میں پھر جان آ ہی جائے گی، کہے گا حشر کا میدان آ گئے آقا، سخاوتوں کے کھلے در در نبی پسخی، سخاوتوں کے کھلے در در نبی پہ سخی، فقیر بن گئے دھنوان آ گئے آقا، خدا کا کرنے کو اعلان
خواہ بنانے سب کو مسلمان آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، بہت عمدہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ سخی سرما صاحب، آپ حمد و نعت کے اشعار پیش کیے. اس ہدیہ عقیدت کے لیے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. اور آج یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ایک جملہ جسے پوری دنیا میں اس انداز سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی پہچان بنا کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. تو یہ جو سلام ہے طارق عزیز صاحب کا، تو وہ آج بھی ہمیں یاد ہے کیونکہ انہوں نے بہترین ادبی حوالے سے کام کیا، اور ان کا جو تلفظ اور ادائیگی تھا، وہ جب شعر پڑھتے تھے تو شعر میں جان پڑ جاتی تھی. جس طرح وہ ادیب اور شاعر جس کا وہ شعر پڑھتے تھے خاص کا نام بھی بتاتے تھے. یہ ان کا یہ کہہ لیں کہ طلوع امتیاز تھا کہ انہوں نے اپنے شعبے میں رہ کر بہترین خدمت کی. شاعر تھے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے آپ کی. تھے، تنبیہ تھے. ایک فن ہے وہ جب صاحبال سے انہیں سفر کیا تو کہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں جو ہمارے پروگرام کے صدر ہیں. خوش آمدید سر. اور اسی دوران میں منزہ یاسمین صاحبہ نے بھی جوائن کیا. خوش آمدید. جی میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری، میں چاہوں گا آج کے پروگرام کی تعارف کے طور پر محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ تاکہ آج کے پروگرام کو آغاز کریں. تو جب تک انشاءاللہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب بھی آنے ہوں. جی محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ. اور ربینہ شاہین شاعرہ اور ادیبہ کالم نگار ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور تقریر کار کے لاہور چیپٹر کی صدر ہیں. ہمارے پروگرام تقریر کار کے نظامت کار بھی ہیں. جی تشریف لائیے. جی بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے. چونکہ آج کے ہیں جس شخصیت کے لیے ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے طارق عزیز. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا 141واں پروگرام ہے. ہم سخن ساز جس میں دنیا بھر سے ادیب اپنی نگارشات پیش کرتے ہیں. محبتوں بھرے اس پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید. اور محترم جناب شبیر احمد قادری صاحب کی صدارت اس پروگرام کے لیے باعث صد افتخار ہے، ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے. آج جس خوبصورت شخصیت کے بارے میں اظہار رائے اور ہدیہ تہنیت پیش کیا جائے گا وہ پاکستان کا مشہور اور معروف نام محترم طارق عزیز کا ہے. طارق عزیز کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. وہ اپنی ذات میں خود ایک چلتی پھرتی اکیڈمی تھے. لاہور گارڈن ٹاؤن کے رہائشی تھے. 30 سال نیلام گھر میں مسلسل نام کمایا اور صرف اپنی نظامت اور میزبانی کرتے رہے. ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے اور یہ سلام پوری دنیا میں مشہور ہوا. بہترین اداکار، سیاستدان، اینکر پرسن، بہترین شاعر، ذمہ دار بھائی اور محبت کرنے والے شوہر، لیکن سب سے بہترین وہ ایک اچھے انسان تھے. ہر میدان میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی. مطالعے کا شوق حد سے زیادہ تھا.
کتابت زندگی میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ یتیموں مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے اور دارالشفقت میں یتیم بچوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا انہوں نے۔ اپنی اولاد نہیں تھی مگر یتیم بچوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے اور روحانی تسکین حاصل کرتے تھے۔ اپنی ساری پراپرٹی اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ مجید انور اور منیر نیازی کے شہر ساہیوال میں پلے بڑھے۔ والد ایک اخبار نکالتے تھے اور پھر دونوں شاعروں کی صحبت میں شعر و شاعری شروع کی۔ نیلام گھر میں ان کی نظامت نے بے شمار شہرت پائی۔ پی ٹی وی وہ واحد ملک کا چینل تھا جس میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا تھا اور عالمگیر شہرت کا حامل تھا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا ایسی شہرت سے نوازتا ہے۔ ہم طارق عزیز کو ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، آپ سب کی سماعت ہو۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی بہت شکریہ محترمہ، اور اب میں ملتمس ہوں محترم جناب ڈاکٹر سے گفتگو کا آغاز کریں اور آپ کے آنے سے ڈاکٹر شبیر احمد قاری صاحب، آپ نے اپنا مائک آن کر لیں۔ جی نیٹ کا تھوڑا ایشو بن گیا تھا اور ہمیں پھر سے جوائن کیا محترمہ ڈاکٹر فرید البانو صاحبہ نے۔ جی جی ہیلو جی جی آپ کی جی آواز آ رہی ہے۔ جی میں بلانا چاہ رہا تھا ڈاکٹر شبیر احمد قاری صاحب کو کہ وہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں اپنی گفتگو سے، پھر سے تو پھر جوائن ہم انشاءاللہ آگے تک آپ کی آواز میں آپ کی آواز میں ڈبلنگ آ رہی ہے، ایک آپ اس کا مائک ایک آف ڈاکٹر کر دیں۔ شبیر جی ڈاکٹر شبیر قاری صاحب کو بلائیں۔ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر شبیر قاری صاحب۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ارحم صاحب، یہ مسرت ہے کہ اس وقت ہم 141 پروگرام میں گفتگو ہیں اور ایک ایسی کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں جو شخص نہیں شخصیت، اور انہوں نے بحیثیت ایک فرد، بحیثیت ایک پاکستانی اور سچے پاکستانی، ان کی آواز میں جو گن گرج تھی، میڈم نے ان کی ابتدائیہ جو تھا اور وہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، وہ تو ایک بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے اور انہیں سے منسوب بھی ہے۔ آج بھی کوئی اگر یہ کہے گا تو فوراً طارق عزیز کا سراپا ذہن میں آئے گا۔ بے شک۔ لیکن وہ اپنے پروگرام کے اختتام پہ جس بھرپور طریقے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، وہ بھی بہت سے دلوں کی دھڑکن تھا اور ہے، اس لیے کہ یہ اپنے وطن سے محبت ہر ایک شخص کا عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے وطن سے، اپنی دھرتی سے پیار ہے۔ طارق عزیز کا ایک اور تخصص جو انہیں اپنے معاصرین میں ممتاز کرتا ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی آواز ہے، پہلی اناؤنسمنٹ انہوں نے، اور
मोहतरमा कमल नसीर साहिबा ने की थी। और ये अव्वलियात जो होती हैं किसी भी इदारे के तहत, उन शख्सियात को हमेशा याद रखा जाता है। तो तारिक अजीज ने जो पाकिस्तान की मोहब्बत को जिस तरह उजागर किया अपने प्रोग्राम्स में, और जिस तरह वो नीलाम घर, जो उनकी मकबूलियत का ये आलम था, एक तसलसल के साथ उन्होंने प्रोग्राम किए कि पीटीवी ने बाद में वो प्रोग्राम उन्हीं से मंसूब कर दिया। बज़्म तारिक अजीज के नाम से वो प्रोग्राम पेश होता रहा। जी उसके बड़े मुमताज प्रोड्यूसर का ये हदायत हासिल रही, जिनमें ताजदार आदिल साहब जो सबा अकबराबादी के साहबजादे हैं, उनने मुमताज मकाम हासिल है। तारिक अजीज शायर भी बहुत उम्दा थे। पंजाबी की जो उनका शेरी मजमूआ है होन दा दुख, वो मुनीर नियाजी के ततब्बों में जिस तरह की उन्होंने मुख्तसर नज़में लिखी, उसकी बिना पे उन्हें मुमताज मकाम हासिल है। गोया बहैसियत पाकिस्तानी शायर और बहैसियत ब्रॉडकास्टर और न्यूज़ कास्टर भी, और फिर कंपेयर भी, और कई हैसियतें अनाउंसमेंट्स उन्होंने की। तो ये उनकी एक शख्सियत में जो एक सेहर था, वो एक जादू था, जो पाकिस्तानियों को उनकी घन गरज वाली आवाज़ की बिना पे और उनके लबो लहजे, उनके तलफ़ुज़, उनके लफ्ज़ों को अदा करने का जो एक ख़ास हुनर अल्लाह करीम ने उन्हें अता किया था, उस बिना पे उन्हें मुमताज़ मकाम हासिल था। तारिक अजीज को आज खराज अकीदत पेश करने का एहतमाम करके मैं समझता हूँ कि मैडम ने और अरहम रोहान साहब ने बहुत उम्दा काविश की है कि ऐसे लोगों को जो बराह रास्त दूसरा अदीब की हैसियत से शोहरत नहीं अपनी बना पाए, हालांकि बुनियादी तौर पे तो वो शायर थे, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग की जो उनकी, और फिर जिस तरह टीवी के साथ उनकी रग़बत थी, उसने इस पहलू को वक्ती तौर पे दबा जरूर दिया है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि वो किस कदर उम्दा शायर थे और किस कदर उम्दा आवाज़ उनकी थी, सेहत तारी कर देती थी सुनने वालों पे। और प्रोग्राम में जामियत के अनासर जो लेके आए, बहुत से लोग, जैसे कसौटी एक प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन प्रोग्राम को ख़ास तौर पे बहुत देर तक उनकी वफात तक ये सिलसिला इस कदर कामयाबी से, तवातुर से, तसलसल से जारी रहा कि आज भी हम उस खला को महसूस करते हैं। आज इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो रहा जिस तरह तारिक अजीज करते थे, और ये प्रोग्राम ना होना एक सवालिया निशान है पीटीवी के लिए कि वो क्यों इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम नहीं करता, जो इफादा आम का प्रोग्राम, जिससे ख़ास तौर पे नस्ल नौ को बहुत कुछ फ़ायदा होता था, तालिब इल्मों को, असातिज़ा को, और अहले ज़ौक़ को, अहले सियासत को, अहले सकाफ़त को। ये मैं समझता हूँ कि तारिक अजीज़ बिलाशुबा हमारे खराज तहसीन के हकदार हैं कि एक और उन्होंने जाते जाते जो काम किया, उनकी प्रॉपर्टी जो थी, ये एक मिसाली, एक मैं समझता हूँ किरदार की निशानदही करती है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। आज यहाँ पाकिस्तान को लूटने वालों का शुमार कतार नहीं है। वहाँ कोई बंदा अपने जायदाद मुल्क के नाम कर दे, वतन अजीज के नाम कर दे, तो इससे बड़ी किसी की हुब्बुल वतनी क्या हो सकती। तो ये मैं समझता हूँ कि आज हमें खराज तहसीन पेश करते हुए प्रोग्राम के दौरान में भी उन्हें साथ साथ उनके कुछ शेर किसी को अहबाब को याद हो, होन दा दुख में से या वैसे, तो उन्होंने कौम को ये भी बताया कि टेलीविज़न और रेडियो में किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए, कैसे मुकालमा अदा करना चाहिए, और कैसे एक हुनरमंदी के साथ हमें ऐसे जो सवाल जवाब की सूरत में प्रोग्राम है नीलाम घर की तर्ज के, और उनके
नीलाम घर के ततब्बों में बहुत से ऐसी मजमूए शाये हुए जो नीलाम घर की तर्ज पे सवाल जवाब की सूरत में लोगों ने तरतीब दिए, उनमें मैं भी शामिल हूँ। जब मैं तालिब इल्म था फर्स्ट ईयर का, तो मुझे याद है कि हमने कुछ 20-25 किताबें मैंने तरतीब दी इंटर में, फर्स्ट ईयर से लेके एमए तक के दौरान में। तो उसमें शायरी के, गज़लों के, नातों के, मजमूओं के जो इंतखाबात थे वो भी शाये किए और साथ साथ फिर जनरल नॉलेज की। उसमें तहरीक व तारीख पाकिस्तान ने तरतीब दी जो 500-600 सफ़े की थी। फिर बहरे मालूमात थी, फिर इस तरह अल्लामा इकबाल के हवाले से, सीरतुन नबी के हवाले से एक ज़ौक़ था जो तारिक अजीज ने परवान चढ़ाया। उनके मुतासरीन में मैं अपने आप को भी शुमार करता हूँ। अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता करे और उनके फैज़ान का चश्मा हमेशा जारी रहे। आपका बहुत शुक्रिया। आमीन, बहुत शुक्रिया। जी, मेरे नेट का मुसलसल मसला है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। तो अभी डॉक्टर साहब ने जो तारिक अजीज साहब की शायरी के हवाले से बात की, तो इनका एक शेर है जो बड़ा खास, एक कह लो कि ज़ुबान रद आम है कि हम वो स्याह वक्त हैं तारिक के शहर में, हम हाँ वो हाँ, क्या स्याह वक्त हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। तो वाह, क्या ये उनका बड़ा खास एक शेर था, बड़ा अदा थे वो करते थे। उनकी जो क्या अदा है वो उन्हीं तक महदूद थी, उसके बाद ना उससे पहले कोई संदाल को नहीं। मैम आप आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को। जी चले, मैं फिर आगे दावत देती हूँ मोहतरमा डॉक्टर फजीलत बानो साहिबा को कि वो आए और तारिक अजीज के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें और उन्हें हदिया तहनीयत पेश करें। जी डॉक्टर साहब, अपना माइक ऑन करें अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर फजीलत बानो साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर नजमुन निसा नाज साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर नजमुन निसा नाज साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो हाँ जी, हाँ जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगी तारिक जी अजीज के बारे में? जी जी। जी जी। तारिक अजीज पाकिस्तान टेलीविजन पर दिखाई देने वाला पहला चेहरा थे। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविजन ने जब लाहौर से अपनी नशरियात का आगाज किया तो तारिक अजीज साहब इस पर दिखाई देने वाला पहला चेहरा थे। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आप अपना जारी रखें अपना। जी। वो पीटी वो पीटीवी पर 56 बरस की तवील मुद्दत तक नजर आते रहे। इसकी वजह ये रही है कि उन्होंने पीटीवी के अलावा किसी भी निजी टीवी के लिए कभी काम ना किया। हालांकि प्राइवेट सेक्रेटरी से इन्हें हमारी मुआवजे की पेशकश की जाती रही। इसके अलावा किसी भी निजी टीवी पर वो हालांकि प्राइवेट सेक्रेटरी से इन्हीं मुआवजे की पेशकश की जाती रही। सन 2000 ईस्वी में जब पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स की शुरुआत हुई तो पीटीवी के स्टार्स और सुपरस्टार्स को मुंह मांगे मुआवजों पर प्राइवेट चैनल्स ने
बाइकाट किया, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा अवाम को अपने चैनल से वाबस्ता करना था। इस मुहिम के तहत लगभग पीटीवी के प्लेटफॉर्म से मारूफ होने वाला हर चेहरा प्राइवेट चैनल पर जलवागर हुआ, लेकिन तारिक अजीज प्राइवेट सेक्रेटरी के दफ्तर से बाहर रहे। हालांकि वो चाहते तो निजी टीवी शोबे से अच्छी खासी रकम बना सकते थे। जिंदगी के आखिरी 16 वर्षों में तारिक अजीज के साथ प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करने वाले आगा कैसर बताते हैं कि निजी टीवी के हर काबिल जिक्र मीडिया हाउस की ख्वाहिश रही कि तारिक अजीज उनकी टीवी स्क्रीन पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, लेकिन उन्होंने कौमी टीवी से वाबस्ता रहना ही अपने लिए एजाज समझा। आगा कैसर ने एक मारूफ मीडिया हाउस का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे पहले रमजान ट्रांसमिशन की पेशकश हुई, मगर लाखों रुपयों के ऑफर के बावजूद उन्होंने ये पेशकश कबूल नहीं की। जी आगा कैसर ने बताया कि तारिक अजीज बीमारी में भी रिकॉर्डिंग कैंसिल नहीं कराया करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि तारिक साहब को शदीद बुखार था। हमने इन्हें मशवरा दिया कि रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, लोग घर नो मायूस वापस जाओगे। नहीं दोस्त, लोग मायूस घरों को लौटेंगे। कैमरे ऑन होते तो शदीद बुखार में भी उनके जिस्म में बिजली कूद जाती। तारिक अजीज के कैमरों के सामने आने के हवाले से सुहेल अहमद कहते हैं कि तारिक अजीज विंग से यूं स्टेज पर आते थे जैसे शेर मैदान में निकलता है। क्या 150 रुपये से 10 लाख फी घंटा तक का सफर। तारिक अजीज अपने कैरियर में मुल्क के सबसे महंगे टीवी होस्ट रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 1 घंटे का मुआवजा 10 लाख रुपये तक भी वसूल किया और कॉलेज से मुल्हका मोहल्ले की सड़क पर चारपाइयां बिछाकर सोते थे। तारिक अजीज बताया करते थे कि हम दोनों सुबह होने से पहले वहां से उठ जाया करते, क्योंकि हम दोनों अपने आप को हीरो समझते थे और हमें शक था कि सामने वाले चौपारे से हमें कोई देखता है। तारिक अजीज पर इनकी इब्तदाई जिंदगी में तरक्की पसंद नजरियात के गहरे असरात रहे। ताहम बाद अज़ां वो इल्मी सियासत भी करते रहे। पाकिस्तानी सोसाइटी में उनका तशख़्ख़ुस फनकार और ब्रॉडकास्टर से बढ़कर रहा। यही वजह है कि इन्हें सियासत में भी संजीदा लिया गया। तारिक अजीज ने सन 1997 के आम इंतखाबात में लाहौर से कौमी असम्बली के नशिस्त से आज के वजीर आजम इमरान खान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट हमला केस के बाद तारिक अजीज अमली सियासत से किनारा कश हो गए थे। तारिक अजीज भुट्टो के साथी और जनरल जियाउल हक के दोस्त भी थे। एक ज़माने में तारिक अजीज साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में शामिल थे। उन्होंने भुट्टो साहब के हमरा सरकारी औफत के साथ मुख्तलिफ ममालिक में खास तौर पर सऊदी अरब का दौरा किया। था। इनकी जिंदगी में इनसे ये सवाल किया गया कि आपने बाएं बाजू की सियासत से आगाज किया और फिर भुट्टो और जनरल जियाउल हक के दोस्त बन गए और कुछ अरसा बाद
नॉन लेग की टिकट से कौमी असम्बली में पहुंच गए। इन सवालात के जवाब में वह कहा करते थे कि भुट्टो पढ़े लिखे, ज़हीन, खूबसूरत इंसान थे। वो मुझे पसंद भी थे, लेकिन यहाँ कोई भी बिल्शेविक सियासी पार्टी नहीं थी। हमारे यहाँ तो सियासी रहनुमाओं को उर्दू बोलनी भी नहीं आती। और जहाँ तक आप जनरल जियाउल हक की दोस्ती का ताना देते हैं, मुझे दोस्त जनरल जिया ने बनाया था। मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी। तारिक अजीज एक कालम निगार और शायर भी थे। तारिक अजीज उनके कालिमों का मजमुआ, दास्तान और पंजाबी शायरी पर मुश्तमिल किताब हमजाद दाद दुख भी शाया हुई थी। वह अदब और शायरी से गहरी रग़बत रखते थे, और इसकी मिसाल यह है कि इनके चाहने वालों ने देखा कि अपने 40 साला तवील टीवी शो में किसी काबिल जिक्र शायर का कोई ऐसा शेर ना था जो इन्हीं अजहर ना होता था। तारिक अजीज एक अरसा फिल्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे, जहां उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में मरकजी और अहम नौइयत के रोल अदा किए। ये तारिक अजीज की खुशकिस्मती रही कि पाकिस्तानी फिल्म मैगजीन ने इनके लिए किरदार भी ऐसे लिखे जिनमें इन्हें जोश खताबत के मौके मिलते रहे। जी शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा था जी डॉक्टर साहब। जी जी वाह, शुक्रिया शुक्रिया मैम। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और सबसे शुक्रिया अच्छा सर। ये लगा कि इनका डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे अपने तासरात पेश किए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। तो जी आपका भी शुक्रिया मैम। जी बड़ा वाकई अच्छा। वो बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में भी उतनी मुकम्मल होती हैं और जाने के बाद भी उतनी मुकम्मल होती हैं, कोई उनकी जगह ही नहीं ले सकता। जी बिल्कुल। डॉक्टर जी नजमुल हसन लाल साहब, आपको गोपी जान भी मुबारकबाद दे रहे जी शुक्रिया शुक्रिया सर। जी शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। तो अभी अभी आज हमारे सर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया हम पहली बार मोहतरमा रुबाब मलिक साहबा ने इकबाल से, तो बेहतरीन राइटर हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन्होंने कोई किताब पर तबसरा करना है, तो आप अपनी तहरीर पेश कीजिए और आपको खुश आमदीद। मोहतरमा रुबाब मलिक साहब। जी मोहतरमा रुबाब मलिक साहबा, आपको दावत दी जा रही है। आपको आवाज़ आ रही है तो अपना कैमरा ऑन करें और अपनी निगारिश पेश करें। रुबाब मलिक साहबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप अपनी निगारिश पेश करेंगी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। खुश आमदीद आपको हम सुखन साज प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमाम मेरे सीनियर्स को मेरा सलाम, वालेकुम सलाम। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तख्लीकार इंटरनेशनल का, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया मुझे, और मुझे ये मौका फराहम किया कि अपने सीनियर्स के सामने मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप सब अहबाब ने बहुत खूबसूरती से तबसरा पेश किया, और एक जामिया तारुफ तारिक अजीज साहब का, और मुसलसल खराज अकीदत उन्हें पेश कर रहे हैं। तो एक जामिया अंदाज में एक भरपूर प्रोग्राम जारी है। तो यहाँ ऐसा है कि आप लोगों ने तो सब बेहतरीन पेश कर दिया, लेकिन मैं यहाँ एक किताब का तारुफ और उस पर अपने चंद अल्फाज पेश करना चाहूँगी, साहिब सदर की इजाज़त से। बिस्मिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। तो
میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ طارق عزیز کی اس بزم میں مجھے بلایا، اور وہاں چونکہ آپ لوگ اپنا یہاں بیان کر چکے ہیں، تو اب میں ایک نئی کتاب کو یہاں لے کر آؤں گی اور اس کا تعارف پیش کروں گی۔ تو سب سے پہلے جو میری کتاب ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ ہیلو، جی جی، آپ کی آواز آ ہیلو، رہی ہے۔ جی جی جی، آپ جی کی میم، آواز آ رہی ہے۔ میری آواز جی آ آپ رہی ہے؟ جی جی جہاں رکھیں۔ ایک منٹ، ویڈیو میری رک گئی تھی جس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جی جی نہیں میں نہیں، ویڈیو بھی جی صحیح آ رہی ہے۔ جی جی ابھی شاید میں اپنی آج کا میرا جو موضوع گفتگو ہے وہ ڈاکٹر صنوبر الطاف کی کتاب ایک بے خواب دوپہر کا فلیش بیک ہے۔ اس پر میں جی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صنوبر الطاف پاکستان کے ادبی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، کئی سالوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور گزشتہ چند سالوں سے نمل یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اس سے پہلے ان کی نظموں کا ایک مجموعہ 2022 میں شائع ہو چکا جس کا نام ہے کائنات کے بیک یارڈ سے۔ اس کے بعد 2024 میں ان کی یہ کتاب ایک بے خواب دوپہر کا فلیش بیک منظر عام پر آئی۔ یہ کل 27 کہانیوں پر مشتمل کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ ہیلو، جی جی، جی ہم سن رہے ہیں، پلیز جاری رکھیں۔ جی پلیز۔ یہ کتاب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خواب اور حقیقت کا روپ ایک ساتھ چلکتا ہے۔ اس کتاب پر ڈاکٹر رویش ندیم، عرفان عرفی، اختر رضا سلیمی اور مبشر احمد میر جیسی روشن فکر شخصیات نے اپنی آراء پیش کی۔ لکھت لکھواتی ہے، ہم جو روشن سی راہوں میں مارے گئے، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، ایک بے خواب دوپہر کا فلیش بیک، ممنوعہ موسموں کی کہانیاں اور آؤٹ باکس میں پڑھی ایک ای میل جیسی کہانیاں اس کتاب کا حصہ بنی۔ یہ کہانیاں محض لفظوں کا ہنر نہیں، یہ انسانی جذبات اور شعور کی وہ شکل ہے جہاں عقل اور زمان و مکان کے قوانین ایک دوسرے میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کائنات کی وسعتوں میں ستارے روشن اور اندھیرے کے درمیان اپنا سفر طے کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ان کا افسانہ بھی دھند اور شفافیت کے بیچ قاری کو ایک نئی معنویت عطا کرتا ہے۔ یہ کتاب کوئنٹم دستاویز ہے جہاں ہر کہانی شعور کی سپر پوزیشن میں چلتی ہے۔ یہ شعور کبھی رومانوی خواب کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور کبھی حقیقت کے کربناک ذرے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ان کہانیوں میں جذبات کی بگ بینگ ہے، اس میں سوالات کی کشش ہے اور احساس کی وہ توانائی ہے جو قاری کے ذہن پر دیر تک ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ یہ تخلیقات بتاتی ہیں محبت بھی ایک توانائی ہے اور یہ توانائی سب پر بھاری ہے، اس لیے اپنے مدار میں حرکت کرنے والے تمام جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی بلکہ ان کو منجمد کر کے ان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت کی مختلف صورتیں ہیں، کہیں ممتا، کہیں شفقت، احترام، ہمدردی، توجہ جیسی صورتوں میں آپ کو محبت نظر آئے گی۔ اختر رضا سلیمی کا یہ اطراف کے افسانے پڑھنے کے بعد جو صنوبر الطاف سامنے آتی ہیں وہ اس سے پہلے کی جانی پہچانی ہوئی شخصیت سے مختلف ہے۔ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی تخلیقات محض ایک متحرک ذہن کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ ایک باشعور تخلیقار کی پہچان ہے جو اپنی کہانیوں میں قاری کو نئی فکری سمت عطا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صنوبر الطاف معاصر شہری اور صنعتی زندگی کے لیے پیچیدہ معاشرتی اور نفسیاتی تنازعات کو میں سطحی سطح پر نہیں پرتتی بلکہ انہوں نے اپنے اندر سرایت کیے ہوئے تضادات کی تشنگی اور وجودی سوالات کو فنی مہارت کے ساتھ کہانی کے پیکر میں ڈالتی ہیں۔ جہاں بیشتر تخلیقار حال کو محض ایک خوابناک دھند میں لپٹا ہوا منظر بنا دیتے ہیں، وہاں یہ اسی دھند سے شفاف اور قابل شناخت چہرے تراشتی ہیں۔ یہ محض کاغذ پر لکھی کہانیاں نہیں بلکہ دھند میں تیرتی ہوئی وہ ادھوری تصویریں ہیں جن کے وقت کے دھیان سے بنتے اور بکھرتے رہتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہوا میں رکھے ہوئے اس چراغ کی مانند ہیں جن سے نہ صرف روشنی چھنتی ہے بلکہ سائے بھی بولنے لگتے ہیں۔ ان کے ہاں بیانیہ ایک آواز نہیں بلکہ کیفیت ہے
اور یہی کیفیت قاری کو مطالعے پر مجبور کرتی ہے اور آخر تک اپنے سیر میں گرفتار کیے رکھتی ہے۔ زبان کا شعور، اسلوب کی اختراع اور ساخت کی تازگی ان کی تخلیقات کو نمایاں کرتی ہیں۔ انہیں صرف زبان پر گرفت نہیں بلکہ زبان کی جمالیات سے بھی واقفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افسانے میں جس روایتی معنوں میں کہانی پن کی شدت کم بھی ہوتی ہے، وہاں لسانی فضا ایسی پیدا کرتی ہیں کہ قاری کو اپنے ساتھ باندھے رکھتی ہیں، اور قاری کبھی بھی بور ہو کر اس کتاب کو چھوڑنے کا نہیں سوچتا۔ ان کا اسلوب اتنا خوبصورت اور رواں ہے کہ مجھ جیسی بے چین روح نے اس کتاب کو چند نشستوں میں ہی پڑھ لیا۔ اگر کرداروں کی بات کی جائے تو اس میں جرنیل سے لے کر ریہڑی بان تک ہر خاص و عام کردار ملتا ہے۔ کہیں قاسم آباد کی گلیوں میں پھرتے مڈل کلاس لوگ ہیں تو کہیں پرتعیش زندگی گزارتی ہوئی اشرفیہ۔ بے ایمانی، جھوٹ، رشوت، فریب، انا پرستی، خود غرضی، ظلم اور ناانصافی کو بھی اپنا موضوع بنایا۔ کہانی کار راہ چلتے یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے جو رویے محسوس کرتی ہیں یا جس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس کو کہانی کا حصہ بتاتی ہیں۔ ان کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ پیش کرتی ہیں، پھر لمحے موجود سے کہانی کشید کر کے مستقبل سے جوڑتی ہیں۔ کہیں چھوٹی سی یادداشت سے خود کلامی کرتے ہوئے بڑے شاندار مکالمے تخلیق کرتی ہیں، کہیں میڈیا کے مسائل کو اجاگر کرتی ہیں تو کہیں اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ کہانیاں صرف سماج کے مظاہر کا تجزیہ نہیں بلکہ سماج کے اندر پنپنے والی فکری شکستگی، معاشرتی الجھنوں اور مرد و عورت کے باہمی ساخت کو نئی بصیرت کے ساتھ پرتتے ہیں۔ زبان کی فکری اور تخلیقی سطح پر ان کی گرفت انہیں محض ایک افسانہ نگار نہیں بلکہ مکمل شعوری فنکار کا درجہ دیتی ہے۔ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، لیکن انہوں نے اس کو پیش کرنے کا ایک منفرد انداز اپنایا ہے۔ ان کی لکھت میں یہ بارہا محسوس کیا گیا ہے کہ بحیثیت افسانہ نگار یہ کہانیاں صرف آج کی کہانیاں نہیں بلکہ ان کے روشن مستقبل کی ضامن کہانیاں ہیں، اور یہ بات مصنفہ کے لیے بھی خوش آمد ہے۔ ادب کے شائقین کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ صدی بھی گزر گئی تو نئی صدی آئے گی، نئے لوگ آئیں گے، نئے زمانے آئیں گے، نئی کہانیاں لکھیں گے، پھر اشاق جنم لیں گے اور ان لفظوں سے اپنی روح تلاش کریں گے۔ کبھی نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ بقول شاعر، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا۔ بہت شکریہ میم۔ جی ڈاکٹر صاحب اس پہ جی تبصرہ بہت کریں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سر آپ کی بہت آواز شکریہ۔ نہیں آ رہی، باب ڈسٹورشن صاحبہ ہو نے رہی ہے۔ کتاب پہ جو تبصرہ کیا ہے وہ تبصرے کے جو اساسی تقاضے ہیں، کتاب اور صاحب کتاب کے تعارف کے ساتھ ساتھ جو کتاب میں جو مختلف آراء ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے، اور اس کے جو تبصرہ کار ہیں یا دیباچہ نگار ہیں یا جنہوں نے اس پہ اپنی رائے ظاہر کی ہے تو ان کا بھی تذکرہ کر کے پھر اپنی رائے کو شامل کیا ہے۔ تبصرے کا حسن یہ ہے کہ کتاب کے مندرجات سے قاری کو آگاہ کیا جائے تاکہ اس میں بھی یہ کتاب پڑھنے کی تشویق پیدا ہو، اور اس تبصرے کو سماعت کر کے مجھے ذاتی طور پہ بھی خوشی ہے کہ محترمہ نے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا، اور انہوں نے جو محبت کی بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کہانی کا فیض ہے جو جس پہ یہ بات کر رہی تھی۔ کہانی ایک ہو یا 10 ہو یا 15 ہو، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کہانی زندگی کا دوسرا نام ہے، اور یہ کہانی ایک آدھ 2 4 15 20 صفحوں میں مکمل نہیں ہوتی، نہ ایک مجموعے میں مکمل ہوتی ہے۔ کہانی کا حسن یہ ہے کہ اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے۔ کہانی کا ایک سرا کوئی پکڑتا ہے، دوسرا سرا کوئی پکڑتا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں کچھ نئے پہلو، نئی زاویے، نئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ تو محترمہ نے
इस तबसरे में एक किताब इस तबसरे में किताब का तारुफ जो है वो भी है, और अपनी राय शामिल करके उन्होंने गोया इस तबसरे की अहमियत को दो अच्छा कर दिया। मैं खैर मकदम करता हूँ मोहतरमा के इस तबसरे का, इसमें उन्होंने मोहब्बत को तवानाई करार दिया, एक जज्बा करार दिया, एक मोहब्बत जो हमदर्दी भी है, और मोहब्बत जो शफकत भी है, मोहब्बत ममता भी है। ये बहुत ही उम्दा और दिलकश बातें हैं। तो कहानी की तरह मोहब्बत का भी कभी और कहीं इख्तिताम नहीं हो। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी राय से मुझे मुस्तफीद किया। बहुत शुक्रिया, आपने इतने बड़े अल्फाज मेरे बारे में कहे। मैं क्योंकि पिछले मकतब हूँ, यहाँ जितने भी लोग मेरे सीनियर्स हैं, मेरे असातिज़ा की जगह पे हैं, और बेशक मैं उस लेवल पे बात नहीं कर पाई, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बहुत तबसरा मेरा क्लैरिटी थी। तवील है और बहुत सारी चीजें मैं कहना चाह रही थी, लेकिन वक्त की कमी की बहस में उनको यहाँ शामिल नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया। बहुत क्लियरली आपने ये बातें की हैं माशा। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपके तबसरे का भी और रुबाब मलिक साहिबा आपका भी। तो आगे मैं दावत देती हूँ मोहतरम जनाब गुलजार आसिम जी, साहब को। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रुबाब मलिक साहबा, आप यकीनन खुशकिस्मत हैं। जी हाँ जी, आपके तबसरे तमाम पर जो अस्सलाम तबसरा वालेकुम। दोस्तों डॉक्टर अस्सलाम साहब ने वालेकुम, आपको फरमाया डॉक्टर है, साहब को ये और यकीनन हमारे लिए एक एजाज ये अपने माइक को सही कर ले, आपका माइक क्यों नहीं काम कर रहा? मेरी तरफ बारिश हो रही है, तो आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अरहम बिल्कुल साहब ये माइक आवाज के बदल समय। या रवैया बदल। सर मैंने माइक ले लिया है, लेकिन बारिश हो रही है, नेट नहीं काम कर रहा। मैंने ओके ओके। माइक्रोफोन भी ले लिया, स्टैंड भी नया ले लिया, लाइट भी नहीं ले ली, सामान ले लिया, लेकिन बारिश ने नेट की सारा स्पीड काम आज खराब वैसे कर ही दिया। स्लो है काफी। हाँ जी। जी यस। जी, मोहतरम जनाब सैयद गुलजार आसिफ साहब। जी, जी, आप अपनी निगारिश पेश करें जी। तमाम दोस्तों को मेरी आवाज आ रही है। आवाज हम आपकी भी थोड़ी हम डिस्टर्ब ख्वाजा कर रही है। तारा अली साहब को अल्लाह ताला उनको होंगे। बेसिकली आज बारिश की वजह से ना नेट ही खराब है जी कुछ। जी तो मैं तो जिन दोस्तों ने उनके बारे में जो थी, जितना बड़ा उन्होंने काम किया है, वो बिलाशुबा बहुत बड़े आजाद के हकदार हैं। और पाकिस्तान में मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में टीवी का आगाज उन्होंने ही पहले दिन से किया था, खास तौर पे पीटीवी को। और जब वो छोड़ के गए हैं तो पीटीवी भी चला गया उनके साथ, वो चीज जी, नहीं वाह, रही जो थी। क्या अच्छा बेशक जुमला। मैं मैं ये अफसाना पेश करूंगा। अफसाने का अनुमान है आंखों के उस पार। बात। रात के तीसरे पहर का सन्नाटा था। हवा में भीगे हुए पीले कुमकुमे की जर्द रोशनी गली की गीली सड़क पर तैर रही थी। ये रोशनी पानी की बूंदों पर थरक रही थी, जैसे कोई उदास रूह डूब रही हो। आरफ अपनी बोसीदा लकड़ी की कुर्सी में खिड़की की टिक टिक भी एक आह की मानंद लग रही थी, जो वक्त के साथ एक ही जगह पर रुका होता। सामने मेज पर सिगरेट की राख से भरी हुई एस्ट्रे पड़ी थी, जैसे जलते हुए ख्वाब का मलबा हो। और एक बिखरी हुई नोटबुक पर सिर्फ एक ही नाम, एक ही हर्फ बार बार लिखा था, हिना। अचानक एक अजनबी झोंका खिड़की का पर्दा हिलाकर कमरे में दाखिल हुआ, और एक भूली बिसरी मानूस सी खुशबू भी कमरे में फैल गई। वही खुशबू जो हिना के जाने के बाद
फजा से गायब हो गई थी। आरफ को लगा जैसे किसी ने उसका नाम गुनगुनाया हो, जैसे कोई बहुत करीब उसके कान में सरगोशी कर रहा हो। आरिफ, उसने झुरझुरी ली। वजूद की हर रग में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो चौंक कर चारों तरफ देखता रहा। कमरा बिल्कुल खाली था, मगर दिल की धड़कन तेज होकर उसके वजूद के खालीपन का ऐलान कर रही थी। क्या ये ख्वाब था या हकीकत ने एक नया रुख ले लिया था? लाहौर की पुरानी फजा में, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब आरिफ अपने वालिदैन के साथ रहता था, जिंदगी सुस्त रवि से चल रही थी। बाप रिटायर्ड प्रोफेसर थे और माँ का अदबी शौक उस घर की रूह था। आरिफ खुद एक तहकीकी स्कॉलर, क्लासिक उर्दू अदब पर अपनी किताब मुकम्मल करने का जुनून रखता था। ये शौक इसे अक्सर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की दहलीज तक ले आता, जो उसके लिए एक ऐसी दुनिया थी जहां वक्त भी किताबों के साथ रुक जाता है। यही एक सर्द और धुंधले दिन की हल्की रोशनी में पहली बार उसकी मुलाकात हिना से हुई। हिना एक कमगो पुरसुकून लड़की थी, जो फैसलाबाद के रवायती घराने से तल्लुक रखती थी, मगर लिटरेचर से उसकी मोहब्बत इसे लाइब्रेरी खींच लाती थी। वो लाइब्रेरी को अपनी पनाहगाह समझती थी, जहां वो अपने पसंद की किताबों के सफ़ात में अपने ख्वाबों को पा सकती थी। आरिफ उदास नस्लें का मतालिया करते हुए नोट्स लिख रहा था कि मदम सी आवाज उसके कानों में गूंजी, ये किताब बहुत अच्छी है। आरिफ ने चौंक कर सर उठाया। हिना सामने खड़ी थी, अपने बालों को शाल से ढके हुए। आंखों में एक चमक थी और उसके होंठों पर तैरती हुई हल्की सी मुस्कुराहट, जो को उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। आरिफ ने किताब पर हाथ फेरते हुए कहा, इसे पढ़ने के बाद लगता है जैसे मुसन्निफ ने दिल चुरा लिया हो। हिना की हंसी ने वहां की फजा को एक नई जिंदगी बख्श दी, और वो लम्हा अरब की जिंदगी का महवर बन गया। उसके बाद लाइब्रेरी उनका मुकद्दर बन गई। शामें ढलती, सूरज झल झुकता, और वो दोनों पुरानी लकड़ी की मेज के गिर्द बैठे किताबों के सफ़ात पर अपनी कहानियां लिखते। आरिफ, हिना अक्सर कहती, किताबें अजीब होती हैं, ये हमें वहां ले जाती हैं जहां हम जा नहीं सकते। आरिफ जवाब देता, लोग भी किताबों जैसे होते हैं, तुम मेरे लिए वैसी हो। हिना, तुम्हारे हर सफ़े पर एक नया राज है। हिना का चेहरा सुर्ख हो जाता, मगर उसकी आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट तैरती रहती, जो मोहब्बत की जुबान थी। ये मोहब्बत एक खामोश दुआ की तरह उनके दरमियान उतरती गई, जिसका एतराफ कभी लफ्जों ने नहीं किया। और आरिफ कहता, हमारी आंखें सबसे खूबसूरत झील है जो मैंने पहले भी कहीं देखी हैं, शायद सदियों पहले। ये सब एक खूबसूरत ख्वाब था, और ख्वाब का टूटना मुकद्दर होता है। एक दिन बारिश हो रही थी। आरिफ ने हिना को अपनी किताब देने के लिए बुलाया। वो नहीं आई। फिर फोन आया। लफ्ज धुंधले हो गए, जमीन कांप गई, दुनिया खामोश हो गई। एक हादसे ने इस ख्वाब का काम कर दिया। हिना एक मुजस्मे की तरह खामोश हो रही। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ, ठंडा, खामोश, एक पत्थर जैसा सुकून। आरिफ का दिल वहीं दफन हो गया। हिना की मौत के बाद आरिफ का कमरा कब्रिस्तान बन गया। दिन भर चुप रहता, रात भर जागता, वक्त की रफ्तार थम गई थी। वो कभी कभी हिना की तस्वीर खोलता और उसके चेहरे को छूता, और फिर देर तक रोता। दुनिया के रंग उसकी नजर से मिट गए थे। पहले चंद हफ्ते तो आरिफ कमरे में बंद रहा, अपनी वालदा की आवाजों की भी को भी नजरअंदाज करता रहा, जो दरवाजे के बाहर से उसे खाना खाने के लिए बुलाती थी। एक दिन जब वो लाइब्रेरी गया, उसी पुरानी मेज पर बैठा, उसे लगा जैसे हिना सामने बैठी हो। उसने पूछा। लाइब्रेरियन ने हैरत से देखा। कोई नहीं साहब, ये वहम दिन ब दिन बढ़ते गए। आरिफ रातों को गलियों में घूमता, सरगोशियां सुनता, सबसे कहता, हिना अभी आई थी,
वो आती है लेकिन तुम नहीं देख सकते। पहले ख्वाबों में हिना हंसती, बातें करती, फिर ख्वाबों का रंग बदलने लगा। वो खामोश रहने लगी, आहिस्ता आहिस्ता करीब आती, और एक दिन उसने कहा, आरिफ तुम क्यों नहीं आते? आरिफ ने कांपते हुए पूछा, कहाँ? हिना की सरगोशी हवा में पिघल गई। आंखों के उस पार आरिफ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने हकीकत को ख्वाब समझना शुरू कर दिया था। दोस्त जबरदस्ती उसे मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर सुहेल के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी आंखों में झांका जो किसी खला को घूर रही थी। आरफ तुम हकीकत से भाग रहे हो, डॉक्टर ने नरमी से कहा। हिना की मौत को तस्लीम करो, ये वहम तुम्हारे गमजदा दिमाग को की पैदावार है। आरफ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो डॉक्टर की बात को एक दूसरे जहान से सुन रहा हो। उसने धीरे से कहा, मौत तो वो होती है जब कोई हमेशा के लिए चला जाए। वो तो अब भी आती है। अगर वो मर गई है तो मैं किससे बातें करता हूँ? डॉक्टर सेल ने एक लंबी सांस ली। ये तुम्हारा दिमाग है, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। आरव मुस्कुराया, एक खाली बोझल मुस्कुराहट, या शायद ये दुनिया मुझे धोखा दे रही है। एक रात आरिफ अपने ख्वाबों के पीछे चल पड़ा। वो इसी पुरानी गली में पहुंचा जो उसके ख्वाबों में आती थी। वही दीवारें, वही सुनसान गली, और आखिर में वो पुराना मकान जिसकी ऊपरी खिड़की से जर्द रोशनी टमटमा रही थी। आरिफ ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वही मानूस खुशबू खुशबू कमरे में फैली थी। और फिर उसने देखा, हिना खिड़की के पास खड़ी थी, बिल्कुल वैसे जैसे आखिरी बार मिली थी। हिना, आरफ की आवाज रुंध गई। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं गई। मैं गई कब थी? मैं तो यही हूँ। आरफ तुमने मुझे जिंदा रखा। आप ख्वाब अब ख्वाब हकीकत में बदल गए हैं। आरफ ने कांपते हाथों से हिना का हाथ थामा। लम्स गर्म था, बिल्कुल जिंदा, मगर अगले ही लम्हे रोशनी बुझ गई। हवा का एक तेज झोंका आया। जब आंख खुली, कमरा खाली था। आरिफ के हालत का एहसास बाकी था, और आरिफ के लिए ख्वाब और हकीकत की कोई सरहद बाकी न रही। लोग कहते थे वो पागल हो गया है, मगर वो जानता था कि हिना जिंदा है। एक रात ख्वाब में हिना उसके करीब आई, उसके माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, आप दुनिया तुम्हारे लिए सजा है। आरिफ, मेरे पास आ जाओ, आंखों के इस पार जहां बिछड़ना नहीं होता। आरिफ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली। अगली सुबह आरिफ का कमरा खामोश था। मेज पर उसकी नोटबुक खुली पड़ी थी। आखिरी जुमला लिखा था, मैं आ रहा हूँ हिना, आंखों के उस पार जहां ख्वाब खत्म नहीं होते। लोग कहते हैं इस पुराने मकान की ऊपरी खिड़की में आज भी कभी कभी है। आरिफ, तुम आ गए। शायद कुछ लोग मर कर नहीं जाते, वो ख्वाब बनकर रह जाते हैं, और कभी कभी ख्वाब हकीकत को निगल लेते हैं। जी, जजाकल्लाह। क्या वाह बात वाह वाह, खूबसूरत। जबरदस्त। जी, मुफ्तन जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कावी साहब चर्चा करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब आपको तबसरे के लिए बुलाया। जी, डॉक्टर साहबा, अ, गुलजार साहब ने बहुत उम्दा अफसाना पेश किया है, और अभी रुबाब मलिक साहिबा ने भी जो तबसरा पढ़ा, और उसमें भी ख्वाब और हकीकत की बात, और यहाँ इस अफसाने में भी वही बात हो रहेगी। किताबों के रसिया दोनों हैं। किताबों की तलाश में अच्छी किताबें पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी का रुख करते हैं, और फिर जब बंदा जिस दुख को हम इस अफसाने में महसूस करते हैं वो उस वक्त सामने आता है जब दोनों किरदार आरिफ और हिना किताबें पढ़ते पढ़ते किताबी चेहरे पढ़ना शुरू करते। उसके नतीजे में हिना की मौत का जो दुख है, फिर उसे वो अपना दुख महसूस करता है।
اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کہ کردار ہنا جو چند دنوں کے لیے اس سے ملی، اس سے باتیں کی، پھر وہ دنیا سے اوجھل ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ خیالوں کی دنیا میں رہتے ہوئے باتیں کرتا ہے۔ اور خالی کمرہ جس کی طرف افسانہ نگار نے توجہ دلائی، اور یہ جملہ ان کا خاص طور پہ بڑا اہم ہے کہ خالی کمرہ وجود کے خالی پن کا احساس دلا رہا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کیا کسی کی موجودگی میں کمرے کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے، یا اپنے علاوہ کوئی اور ہے جو اس کمرے میں موجود ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اس کے وجود کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ تو دراصل یہ جو کمرے میں موجود ہے وہ خالی کمرہ بھی اس کے لیے خالی نہیں رہتا، بلکہ ایک دوری کا احساس جو ہے وہ اسے آگے لے کے چلتا ہے۔ وہ اگر وہ خالی ہے کمرہ تو پھر اس کا وجود بھی جو ہے وہ خالی پن کو محسوس کرتا ہے۔ تو محترم نے جو یہ بات کی ہے خواب کی، اس کا عنوان بڑا جامع ہے۔ عنوان ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ افسانے کی جان ہوتی، اور انہوں نے اس افسانے کا جو نام رکھا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے کہ آنکھوں کے اس پار۔ اس کا مطلب ہے کوئی یہ حقیقت کی دنیا ہے، اس سے الگ بھی کوئی دنیا ہے۔ جب ہنا کی موت ہوتی ہے تو وہ ظاہری آنکھ سے اسے نہیں دیکھتا، لیکن اس کی جو وجودی صورت ہے اس کو وہ ضرور محسوس کرتا ہے، اور یہی وہ آنکھوں کے پار کا جو معاملہ ہے پھر عارف کو خود بھی اس پار لے جاتی ہے، وہ دعوت دیتی ہے، اور عارف اس کے دور ہونے کی یا اس کی دوری یا جدائی جو ہے اس کو برداشت کرتا، اور وہ پھر اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ خواب جو تھا، خواب کا ٹوٹنا، افسانہ نگار نے بتایا کہ خواب ٹوٹتا ہے، خواب ٹوٹنا انسان کا مقدر ہوتا ہے، اور یہ سارے حقیقت اور خواب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کتابی دنیا میں رہنے والے، جب کتابی چہروں پہ بات آتی ہے تو پھر حقیقت خواب بن جاتی ہے اور خواب حقیقت بن جاتی ہے۔ وہ سائیکارٹسٹ بھی اس کا علاج اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس دنیا میں جا چکا ہے اپنے کمرے کے خالی پن کے ساتھ، اب اس کا وجود بھی اس کا وجود نہیں رہا، بلکہ اس کا وجود ہنا کے وجود میں ڈھل گیا ہے۔ تو اس کی دعوت پہ بالکل اسی طرح مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جیسے فردوس بری میں عبدالحلیم شرر حسین، اور وہ جو اس کو بلاتی ہے حسین کو، تو وہ پھر ان منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے، پھر واپسی کا بھی اسے سفر کرنا ہوتا ہے، پھر وہ مشروط انداز میں واپس آتا ہے۔ یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ عارف اور ہنا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ افسانہ نگار کا مسئلہ بھی ہے، میرا مسئلہ بھی ہے، اور ہمارے وجود کمرے کا جو خالی پن ہے وہ دراصل انسان کے خالی پن کا احساس، لیکن وہ جو تکمیل ہوتی ہے نا، اس کو ہنا کی صورت میں جو تکمیلی صورت ملتی ہے وہ دراصل اس کی اپنی تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے فیض احمد فیض کا شعر ہے نا کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدہ، بہت خوبصورت افسانہ ہے۔ اس کو افسانوں کی جو کیٹیگرائزیشن ہمارے سیانوں نے، بڑوں نے مقرر کی ہے، یہ ایک طرح کا نفسیاتی افسانہ ہے، اور اس کا مطالعہ، ذہنی مطالعہ، تحلیل نفسی جو ہے وہ اس کے کئی پہلو ایسے ہیں
जिन्हें हम नफ्सियाती तनाजुर में देखेंगे। तो अफसाने का पढ़ना और उस पे अलग से जब निशिस्त में पढ़ा जाएगा तो उसकी नई परतें, नई रहतें और कई ऐसे पहलू जो इस मुख्तसर गुफ्तगू में ज़ेरे बहस नहीं आ पाते, ये नफ्सियाती सतह का अफसाना है और बहुत उम्दा और शानदार अफसाना है। बहुत शुक्रिया। मैं माशाल्लाह कुछ बहुत। अल्फाज कहना चाहता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब ने जो तबसरा किया है, यकीन जाने के मुझे इतना पसंद आया है कि मैं मेरे जब ये अफसाना मैंने लिखा था, तो मैंने बस ऐसे एक नफ्सियाती अफसाना समझ के लिखा था कि जो ज़हनी उलझन होती है उसको सुलझाने का भी कोई हल है या नहीं है। तो मैंने उसको ख्वाब और हकीकत में मिलाकर इस नफ्सियाती उलझन को मैं इस अफसाने में डाला था, और डॉक्टर साहब ने मेरी चोरी पकड़ ली, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनका तबसरा था। सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब। हाँ, मैं तो भी यही कहने वाली थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और जामिया तबसरा पेश किया और बड़ा गहराई से अफसाने को लिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब ने तो आरफ के साथ सफर किया है और हिना से मिल के आए हैं माशाल्लाह से। हाँ ऐसा तबसरा था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रियल होता है बहुत जिंदगी में। शुक्रिया जनाब मोहब्बत गुलजार साहब, इतनी और सच्ची बहुत होती शुक्रिया। है। बिल्कुल, ये हमारे लिए सादत होती है कि किसी भी राइटर की उसका नुक्ता रूज है कि जो अहले हाज़िर के अजीम जो नक्काद हैं वो उनकी किताब पर, उनके उनकी निगारिश पर तबसरा कर रहे थे। तो बहुत शुक्रिया मोहतरम करके शलीजा नक्तारी साहब। तो अब हमारी आखिरी मेहमान है मोहतरमा अमीना यूनुस साहबा गुलदस्तान से। तो उनको दावत देते हैं कि वो अपनी निगारिश पेश करें। मोहतरमा अमीना यूनुस साहबा। जी, मैं तारिक अजीज साहब का एक गज़ल सुनाती हूँ। जी जी भीगे भीगे मौसमों की आंख का आंसू हो तुम, ख्वाब की ताबीरों में टहलता हुआ जादू हो तुम, टूट कर बिखरी हुई बारिश की बूंदों की तरह, याद की जंजीर में जिगड़ा हुआ पहलू हो तुम, धूप में जलते हुए सेहरा की तन्हाई में, प्यार की सूरत में बरसता हुआ खुशबू हो तुम, जख्म सहते सहते जलते दिल की खामोशी में, दर्द को आवाज देता हुआ आहू हो तुम, रोशनी बनकर हमेशा साथ रहना मेरे, अंधेरों में ढूंढता रहता हूँ जिसको वो हो तुम। जी जज़ाकल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया। जी। और हम आगे प्रोग्राम कैसे बढ़ाना है? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। असल में इधर बारिश हो रही है, तो आज बारिश की वजह से मसला हो रहा है। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कारी साहब से कि वो आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए अपने कलमात से आगाह फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि आज का प्रोग्राम मंसूब है तारिक अजीज साहिब से। तारिक अजीज अपने नाम की तरह हर दिल अजीज फनकार थे, आर्टिस्ट थे, फिल्मों में, टीवी पे, रेडियो पे, तो वो काम करते ही थे। लेकिन मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि वो हमारे दिलों में भी कहीं क़याम करते थे और काम करते थे। ये एक फनकार के फन की मेराज होती है कि वो टीवी स्क्रीन से उतर के दिल की स्क्रीन और जहन की स्क्रीन पे अपनी
जलवा गरी का सामान करे। तो तारिक अजीज ऐसे ही फनकार थे। उन्होंने फिल्मों में भी अपने फनकारी के झंडे गाड़े। मुझे 7 लाख फिल्म याद आ रही है। वो कमाल फिल्म थी कि शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ या नहीं, लेकिन बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो फिल्म में भी बराबर कामयाब रहे, जैसे कबीर खान मरहूम थे या ये अपना शकील साहब थे। तो इसी तरह तारिक अजीज साहब और कई और आर्टिस्ट जैसे इरफान खुसट हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि तारिक अजीज इनमें कोई अपनी जुदागाना हैसियत रखते थे। वो दरअसल आवाज के आदमी थे। अल्लाह ने उनके गले में, उनका जो वोकल कार्ड था वो इस तरह का था कि वो गुफ्तगू भी ऐसे कर रहे हों, निजी गुफ्तगू भी, तो महसूस होता है वो कौम से खिताब कर रहे हैं। तो ये आवाज का जो ग्राम था, उनकी मकबूलियत में उसका भी बड़ा दखल था। फिर उनका मुसलसल मुताला, जैसे अभी मोहतरमा बता रही थी कि उन्हें सैकड़ों शेर याद थे, कोई उनके सामने गलत शेर नहीं पढ़ सकता। कोई वो अपने प्रोग्राम में, नीलाम घर में भी, बज़्म तारिक अजीज में भी, वो 2 टीमों का जो लेके साथ मुकाबला कराते थे, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों की टीमें आती थी ना, तो अव्वल खुद शेर पढ़ते थे, फिर दावते थे ए टीम को, बी टीम। तो वो जिस अंदाज से उनको जजमेंट, वो भी आमतौर पे शायर होते थे और फिर उनकी जजमेंट फिर अपने बड़े अंदाज के साथ वो अशार पढ़ते थे। अभी जो अरहम साहब ने शेर पढ़ा है, कोई मामूली शेर नहीं है। हम वो स्याह बख्त हैं तारीख के शहर में। अब ये कितनी उम्दा बात है, हम वो स्याह बख्त हैं तारीख के शहर में, खोलें दुका कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। यानी ये जो एक, जिस तरह वो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था ना, आलमे बरगश्ता ताले आतिश, वो वाली बात है कि हम जो काम भी करते हैं नतीजा उलट ही निकलता है। तो हमारी मुकद्दर की तो ये दरअसल एक शख्स का मुकद्दर नहीं था। उन्होंने इस शेर में गोया अपने माहौल की, अपने वतन की जो कसम पुरसी थी, उसका भी अहवाल बयान कर दिया है कि जो यहाँ सीधा कदम उठाता है वो उल्टा पड़ जाता है। तो लिहाजा जो उल्टे कदम उठाने वाले, उन्होंने तो जो हाल किया है इस प्यारे वतन का, उस पे तारिक अजीज बहुत कुर्ते थे। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, उन्हें देखने का मौका मिला, उनकी गुफ्तगू सुनने का बराह रास्त मौका मिला। तो मैं तो उनका यकीन जाने कि हमारे बचपन में वो बड़े आला पाए गए थे, जब शऊर हमने संभाला तो उस वक्त भी वो एक तवाना आवाज थी। तो हम तो उनसे बहुत मुतासर थे, अपने लबो लहजे, अपनी गुफ्तार और अपने और किरदार की वजह से। गोया किरदार भी उनका बड़ा पॉजिटिवली नौजवानों को ख़ास तौर पे मुतासर करता रहा। आज जो अ, अ, तहरीरें यहाँ पेश की गई, वो भी बड़ी उम्दा थी। डॉक्टर मोहतरमा रुबाब मलिक साहिबा ने जो एक तबसरा पेश किया, वो बहुत ही उम्दा है। और उसके इस तरह के मुतालियात ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने आते रहने चाहिए, नई किताबों से तारुफ। और मैं समझता हूँ कि अरहम साहब का ये एहसान है हम सब पे कि वो एहतमाम करते हैं कि नई किताबों का तारुफ हो। उन्होंने रविश नदीम साहब की, मुबशर अहमद मीर की बात की, अख्तर रज़ा सलीमी का भी हवाला दिया। और इस तरह ये सारा कुछ ये एक एहतमाम के साथ था कि कहानियों में जो ख्वाब और हकीकत के दरमियान, जैसे क्लॉक होते थे पुराने दौर में, उनके एक पेंडोलम होता था, तो वो झूलता रहता था दाएं बाएं। वो उस तरह की सूरत होती है ख्वाब और हकीकत डॉक्टर की। साहब आपकी आवाज चली गई। जी, नहीं नहीं, आ रही है आवाज, सही आ रही है। क्या आवाज आ रही? चले, आ रही है मैं आवाज। आप फिर जो आइए, आप आइए। हुसैन साहब ने जो अफसाना पढ़ा है, वो तो यकीन जाने कि मैं उसे बारे दिगर पढ़ना चाहूँगा और उस पर अलग से कोई उसका तज्जियाती मुताला करना चाहूँगा, इसलिए कि ये इस नौइयत के अफसाने
अब कम लिखे जा रहे हैं, जिसमें आप समाजी सतह से उठ के नफ्सियाती और ज़हनी मुतालियात की तरफ आगे बढ़ाते हैं, कहानियों को और फिक्शन को सतह पे लेके आते हैं, जिस पे आप देखें ना, डॉक्टर सलीम अख्तर साहब ने उर्दू जो नफ्सियाती दबिस्तान है उस पर भी काम किया, और उर्दू अफसानों का जो नफ्सियाती तनाजुर है उस पे भी उन्होंने बड़ी उम्दा और अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। लाशऊर पे, शऊर पे, तहत शऊर पे भी उन्होंने बड़ी उम्दा बहसें की हैं। तो अगर उस तनाजुर में ये चीज़ें और इस अफसाने को ख़ास तौर पे पढ़ा जाए तो बहुत उम्दा है। आखिर में जो शेर सुनाए मोहतरमा ने, वो भी अपने अंदाज के शेर हैं। तो मैं आखिर पे आज के इस प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम के हवाले से अरहम साहब को और मैं उनकी खिदमत में हदिया तहनीत पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत 141 प्रोग्राम। अब हम अगला पड़ाव जो होगा 9 प्रोग्राम्स के बाद वो 150वां प्रोग्राम होगा। तो ये इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, और जितना हम तशक्कुर करें और जितना शुक्रिया भी अदा करें, खुद अपनी ज़ात के लिए भी तशक्कुर करें, तो उतना ही कम है। इसलिए कि इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होके नया सीखने को, नया पढ़ने को, नया सुनने को मिलता। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत अभी शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जो बात की थी उल्टी दुआओं वाली, तो मुझे सर एक शेर याद आ गया, क्योंकि 2-3 आदमी जो पेश किए ना उससे रिलेटेड है कि इसी तरह की एक दुआ है, किसी शायर का शेर है। अब के दुआ करेंगे कि तुझसे बिछड़ ही जाएं, अब के दुआ करेंगे तुझसे बिछड़ ही जाएं, आखिर तो दुश्मनी है दुआ को असर के साथ। वाह, क्या बहुत उम्दा जी, बहुत बहुत उम्दा। उम्दा। चलो, आज अभी यार मुफ्ती साहब ने ज्वाइन किया था अमेरिका से, हमारे सीनियर राइटर हैं, लेकिन वो उन्होंने जब आखिर गुफ्तगू सुनी मुझे अंदाजा हो गया कि प्रोग्राम क्लोज हो चुका है और सदारती खितबा जारी है, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इससे पहले कि कोई और आए हम दरवाजे मुकफल कर लें। अब यहाँ ठीक हो कोई गया। नहीं आएगा। तो आज के प्रोग्राम को, क्योंकि अब सदारती खितबे के बाद अच्छा भी नहीं लगता कि कोई आए और फिर ना उसको हम मना कर सकें, तो इंशाल्लाह सर आज का ये प्रोग्राम था वो यादगार रहा। 2 से 3 लोगों ने मदद की थी, उनकी कोई ज़ाती वीडियो थी, और हमारे डॉक्टर सैयद एहसान ताबिश साहब बहुत ज़्यादा लील हैं और उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, हॉस्पिटल में दाखिल हैं। और अल्लाह ताला उन्होंने उनको कहा था शिफा कि दे दे। जी जी, आमीन। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए दुआ भी कराइएगा, और मैं प्रोग्राम को बहुत मिस कर रहा हूँ आज के प्रोग्राम को, क्योंकि उन्होंने 1 माह बाद ज्वाइन करना था, लेकिन वो अपनी ज़ाती की बिना पर नहीं ज्वाइन कर पाए। और अनुराधा शबनम जो पूनम वाला है इंडिया से, उन्होंने भी मदद की थी कि वो भी अपनी ज़ाती वजूहत की बिना पर नहीं आ सके। आज फिलिपाइन से पहली बार हमारे साथ गुलाम फरीद भुट्टा साहब मेहमान खुशी थे, लेकिन वो नहीं ज्वाइन कर पाए। तो अभी लेकिन जो ज्वाइन कर पाए हैं वो दोबारा से जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब ज्वाइन कर पाए हैं। तो हम आपको खुशामदी कहते हैं जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब। और जैसे प्रोग्राम क्लोज हो चुका है, आप काफ़ी देर से आए हैं। सॉरी, वो मुझे असल में कुछ असाइनमेंट थी तो अब मैं उससे जी, निकल नहीं पा रहा था। तो अब ये तो होगा कि आप कोई निवारिश पेश ना करें आज, लेकिन ये है कि तारक अजीज साहब के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल हाजिर हैं। तारक अजीज साहब के हवाले से एक बात करें। तारिक अजीज के जी मतलब मैं क्या कहना चाहूँ, बड़ा ही बहुत ही हमा सिफत शख्सियत थी, और पाकिस्तान की तारीख में बहुत चुनिंदा लोगों में उनका शुमार होता है। जिस उन्होंने जिस तरफ भी निगाह उठाई है ना, वहां पर कामयाबियां समेटी हैं। हालांकि उनकी जिंदगी बहुत तगोदौ से भरपूर है, बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि जब वो फिल्मी दुनिया में गए तो वहां पर कामयाबियां समेटी, टीवी में गए वहां छा गए, शायरी की दुनिया में कदम रखा तो उनका शेर आज भी मुझे याद है कि हम वो स्याह बख्त हैं तारीख के शहर में, वाह, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। तो इस कदर खूबसूरत शेर, और फिर नीलाम घर के जरिए उन्होंने
پاکستان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی اس میں وہ ایک یعنی ٹائیکون کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، اور بعد میں ہم نے ان سے اتنی فیضیابی حاصل کی کہ بعد میں اگر آپ دیکھیں کہ عامر لیاقت نے بھی جو نام پیدا کیا وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ طارق عزیزی کو دیتا تھا. تو اور پھر یہ کہ سیاست کے میدان میں گئے تو سیاست کے میدان میں بھی انہوں نے بہت بڑی یعنی ایون کہ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے عمران خان کو شکست دے دی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جس جگہ بھی قدم رکھا وہ مٹی سونا بن گئی. بہت بڑی شخصیت پاکستان کی، اور ہم اسے جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے. اور یعنی بڑی ہمہ جفا صفت قسم کی شخصیت تھی پاکستان کی. پاکستان بالکل اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. وہ چند ایسی شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے. جی بالکل. جی بالکل. اور ایک اور دوسری بات یہ کہوں کہ اردو ادب کے حوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آج اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو دیکھیں، ٹی وی کو دیکھیں، لوگوں کی قول و نگاری اور ان کے طرز یعنی تخاطب کو دیکھیں، تو اس میں آج تو بہت یعنی بلکہ میں کہتا ہوں دوری اختیار کر لی ہے، وغیرہ جب تک یہ طارق عزیز وغیرہ کا یعنی ایک ٹی وی پر ایک سہار قائم تھا، تو آپ یقین جانیں کہ اردو بالکل اپنی پیک پہ ہوتی تھی. اتنی خوبصورت اردو سننے کو ملتی تھی. بہت ہی کم لوگ ہیں جو اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں. طارق عزیز ہو گئے، طلعت حسین ہو گئے، عامر لیاقت ہو گئے، اور اپنے جو افتخار عارف صاحب تھے. جی تو میرا مطلب بڑی کم شخصیات ہیں جنہوں نے اردو کو، اور پھر وہ جو ضیاء محی الدین صاحب. تو کہنے کا مقصد ان لوگوں نے واقعتاً جو ہے نا اردو کی خدمت اپنے دل و جان سے کی ہے. اور آج بھی پاکستان میں اگر کوئی آدمی واقعتاً اس سے یعنی مستفیض ہونا چاہتا ہے تو میرے خیال میں طارق عزیز اس کے لیے مشعل راہ ہے، اور ایک بڑی قداور شخصیت ہے. گلزار صاحب کہ طارق عزیز رخصت ہوئے تو پی ٹی وی بھی رخصت ہو. بالکل. آپ یقین جانے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں بھی ایسا بیس دیا تھا کہ آپ دور بیٹھے ہوں نزدیک بیٹھے ہوں، ان کی آواز اسی ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ تک پہنچتی تھی. ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا، اور بڑا ٹھہر کے، اور بڑا جو ان کا انداز تھا، پھر ان کی دعا کا انداز کے آغاز کرتا ہوں رب جلیل کے نام سے. تو وہ یعنی آپ یہ جانیں کہ ہمارا یہ تقیہ کلام بن گیا تھا پاکستان میں اسٹوڈنٹس کا. ہم یعنی کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے طارق عزیز صاحب کے انداز میں بات کر سکیں. تو بڑا انہوں نے رول کیا ہے بالکل جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں. جب تک وہ حیات رہے ہیں انہوں نے بڑے تمطراق سے اپنی حکمرانی کی ہے. جی بالکل. بہت شکریہ جناب سید یار مفتی صاحب. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح مفتی صاحب ماشاءاللہ سے بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، اور اسی طرح بہت اچھے مترنم انداز میں جو نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک ماحول بنا دیتے ہیں. اور ان کے پس منظر میں ان کے نعتیہ جو کلام ہیں، ہم انشاءاللہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں ان کی، جس میں ان کی تینوں کتابوں کی اکٹھی رونمائی ہوگی. اور انشاءاللہ ابھی وہ ٹائم جو ہم مینیج کریں گے ان کی کوئی مصروفیت جو ہے الگ سے ٹائم رکھیں گے. آج اب پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ آج ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ گیا ہے. پاکستان میں آج یکم ربیع الاول ہو چکی ہے، اور آپ دیار غیر میں ہمارے پاکستانی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پر ربیع الاول کی مناسبت سے ایک بہترین جو تحفہ ہے وہ ہدیہ نعت پیش کرنا ہے. تو محترم جناب سید یار مفتی صاحب، آپ اچھا، اس کے لیے کہ آپ یہ نعت پیش کر دیجیے. جی میں بالکل پیش کر دیتا ہوں، لیکن پروگرام کا اختتام کر دیتے تھوڑا سا آپ کو یہ توقف یہ کرنا پڑے گا کہ چونکہ میں اس وقت آفس میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر میں باواز بلند نہیں کر سکتا، تو میں یوں کرتا ہوں کہ بالکل سائیڈ میں جا کے 2-3 اشعار سے پیش کروں. باواز سلو کر دیتا ہوں. چلے آپ نے باواز سلو کہا ہے تو بڑی آسانی سے کر دیتا ہوں. مجھے 2 منٹ دیجیے گا.
नहीं हम तो जनाब समझ अली, रहे थे मैंने कि जी यार मुफ्ती साहब, हम तो ये जी समझ रहे थे कि मैराथन जो है ना वो डरते नहीं है, लेकिन अब लगता है कि मैराथन भी डरते हैं। जी जी। अच्छा सुनिएगा, बिल्कुल एक नई नात है, उसके दो जी तीन अशार पेश कर जी रहा हूँ कि बिल्कुल। आँख के रोज़न खुले हैं, जलवाए अतहर उतर, दिल बना अल्लाह का घर, मंजरे खुशतर उतर, और ख्वाब में तो दौलत दीदार दी है बेबहा, आईना ताबीर काले गुंबद अखजर उतर, आँख के रोज़न खुले हैं। एक और बस आखिरी मक्ते का शेर पढ़ूंगा कि ऐ मेरे मक्ता ज़ेबा इज़्न ले सरकार से, आँख में कुछ देर रह कर आ मेरे दिल पर उतर, आँख के रोज़न खुले हैं, जलवाए अतहर उतर। बड़ी सुभान नवाज़िश। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया मोहतरम नवाज सैयद यार मुफ्ती साहब, आपने नमाज शरीफ पेश करके यकम रबीउल अव्वल के हवाले से आज की शाम को बड़ा तमीर बनाया। तो अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कारी साहब, मोहतरम जनाब गुलजार सैयद गुलजार आसन साहब, मोहतरमा डॉक्टर नजमून साहब नवाज साहबा, और मोहतरमा रिवाज मलिक साहबा, और जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब, और मोहतरमा रवीना शाहीन साहबा। आप सबकी आमद से ये प्रोग्राम यादगार हुआ। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह बड़ी नवाज़िश। इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, जज़ाक जनाब बड़ी नवाज़िश। वैसे अरब भाई बहुत आपसे बात करता था कि मैं ये रबीउल अव्वल में इंशाल्लाह मेरी हैवी प्रेजेंस होगी टिकटॉक पे। मैं अमेरिका के टाइम के मुताबिक तो रात को 10 बजे बैठूंगा, लेकिन जी पाकिस्तान के जी वक्त में 10 बजे यानी 8 बज रहे होंगे उस वक्त। तो रोज़ाना मेरी उसमें प्रेजेंस होगी मिलाद के हवाले से, ठीक है। तो 10 दिन इंशाल्लाह पूरा इंशाल्लाह। पूरा रबीउल अव्वल मनाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। बड़ी नवाज़िश। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके सर, इजाज़त। अल्लाह जी हाफिज़। जी बिल्कुल। और वो किताब तैयार थी, मैं आपको इंशाल्लाह आज या कल में भेज दूंगा अरहम भाई। जी जी, आप भेज दीजिए, PDF भेज जी दीजिए। जी ठीक है। जी जी अल्लाह हाफिज। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बड़ी शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।